अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट जो है इससे रिलेटेड, एसआरएस से रिलेटेड 2018 का अमेंडमेंट है, स्पेसिफिक रिलीफ अमेंडमेंट एक्ट 2018. Certain new sections added by this 2018 amendment like section 14A, 20A, 20B, 20C and also schedule newly added with the Specific Relief Act 1963, and certain provision substituted or amended like section 6, 10, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 25 and 41. All these sections of the Specific Relief Act have been amended, substituted by the 2018 amendment. And what is the date of the commencement of this 2018 amendment? 1st October. 1st October 2018. Date of commencement of 2018 amendment. 1st October 2018 is the date of the commencement of the Specific Relief Amendment Act 2018. What is the object to pass or enact the Specific Relief Act 1963? To define and amend the law relating to the certain kinds of specific relief. What is the purpose? That is expressly provided under the BEAR Act. To define and amend law relating to certain kinds of the specific relief like specific performance of contract, rectification of the instrument, rescission of contract, cancellation of the instrument, declarative decrees, all are the specific reliefs granted or provided under this Specific Relief Act 1963. Sir? Yes. सर इसमें डिफाइन क्यों लिखा है, कंसोलिडेट क्यों नहीं लिखा? कंसोलिडेट तो पहले से कोई लॉ था नहीं, ये पहली बार ही बना था. कंसोलिडेट तो तब होता कि उस पर पहले से कोई लॉ इन्फोर्स में होती. स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हैज बीन, हालांकि 1877 का था एक पुराना लॉ तो स्पेसिफिक रिलीफ, बट इसमें वर्ड जो है सीपीसी से गवर्न होता था मोस्टली. नहीं, सीपीसी क्यों? 1877 का एक स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट था जिसको इस एक्ट ने रिपील है वो किया था. कंसोलिडेट का आप इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में जाओगे तो उसमें डिफरेंट मीनिंग है. टू कंसोलिडेट द ऑल द प्रोविजन रिलेटिंग टू दैट मैटर. डिफरेंट लॉज में यदि वो कंसर्न मैटर से रिलेटेड प्रोविजन दे रखे हैं, उन सब प्रोविजन को एक ही लॉ में या इनैक्टमेंट में जब इंक्लूड किया जाता है तब उसे कंसोलिडेटेड है वो कहा जाता है. तो वो पर्पस नहीं था इसका. इसमें कुछ जो है वो रिलीफ है उनको डिफाइन करना था. ये रिलीफ क्या है, लाइक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, कैंसिलेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है. तो इन रिलीफ को डिफाइन करना भी है और जो एग्जिस्टिंग लॉ था जो 1877 का उसको अमेंड करना भी इस लॉ का है वो पर्पज है. तो टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉ रिलेटेड टू द सर्टेन काइंड्स ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ. सर्टेन facts related to this act. Specific Relief Act 1963 is retrospective in nature, has the retrospective effect also. That is upon all the cases which were pending in the courts at the time of the commencement of the 1963 Act. This Act applies upon the such pending cases. Second thing, it is not an exhaustive law. This Specific Relief Act is not an exhaustive law in respect of the specific relief, but it supplement to the existing law like a Contract Act or the other time being enforced law. And this act is based on equity. The Specific Relief Act is basically based on equity, and Specific Relief Act is a procedural law. It is not a substantive law. Specific Relief Act is concerned to the procedural law because in this act basically there is no creation of the rights and obligation between the parties. Only the remedies are provided and procedure of such remedies are provided. Therefore, it is a procedural law. The rights and obligation to be created by the Contract Act, by the Indian Contract Act. The Indian Contract Act is a substantive law and this act is a procedural law, one of the branch of the procedural law. In so far as the nature of the Specific Relief Act 1963, it was observed in the 9th Law Commission report that the Specific Relief Act 1963 merely laid down the procedure for the availing different reliefs, and it was also considered
incorporating the provision of the act into the code of the civil procedure. However, this suggestion was found to be impracticable, since it would be a laborious task, and also for the fact that the legal profession and courts were accustomed to the existing arrangement, and thereafter the Honorable Supreme Court and the various high courts have categorically held that the Specific Relief Act 1963 is a procedural enactment, a procedure law, which merely stipulates the rules of pleading and the procedure to be followed by the courts before granting the specific relief. Means crux of this para is that this law, Specific Relief Act 1963, is a merely procedure law. It is not a substantive law. That type of the question may be asked in the prelims paper. Specific Relief Act is substantive law, procedure law, combination of the substantive and procedure law, none of the above, all of the above. The procedure law is the right option of that question. Specific relief deals only with the certain kinds of the equitable relief, and these are the recovery of possession of property, specific performance of contract, rectification of instrument, rescission of contract, cancellation of instrument, declarative decrees and injunctions. The expression specific relief means a relief in specie. It is remedy which aims at the exact fulfillment of an obligation. The expression specific relief is used in contract to compensatory relief. In executory contracts, a suit may be brought to compel the performance of the contract by the person in default, and such relief may be either positive or negative. It is positive when a claim to be performed of it, and negative when it is desired to prevent the doing of the thing enjoined or the undertaken as not to be done. Positive relief means the specific performance of the contract, the very thing or the very act which is prescribed in the concerned contract to be done or to be delivered by the person in obligation. And preventive means the injunction, temporary injunction, perpetual injunction, mandatory injunction to be granted by the court to prevent from doing something or making any statement contrary to the rights of the plaintiff. Law fall into the three categories: those which define the rights, that is considered a substantive law, and those which prescribe the remedies, and those which prescribe the procedure. The last two categories are procedure law, and first category is the substantive law, and law of specific relief belongs to the second category related to the remedies, those which prescribe the remedy. Therefore, the Specific Relief Act 1963 is the procedure law or the part of the procedure law. Specific relief essentially based upon the principle of equity and justice. The Specific Relief Act does not create any cause of action, rather it presumes the existence of Contract Act, cause of action. Cause of action through some other substantive laws. It will come into application only for the purpose of doing complete justice, and in the case by providing the specific complemental reliefs. Cause of action should be governed by the arises in favor of the plaintiff or not. It shall be governed by the substantive law, but the certain reliefs may be granted after the accrual of that cause of action. Such specific relief are provided under the Specific Relief Act in complement to in addition to the relief granted under the Indian Contract Act, like suit for compensation or damages or any other relief available to the concerned plaintiff. 2018 का जो संशोधन है, विनिर्दिष्ट अनुतोष संशोधन अधिनियम 2018, ये लेटेस्ट संशोधन है, नवीनतम संशोधन है इस वो अधिनियम में। कौन कौन सी धाराएं जो है इस 2018 के संशोधन से नई जोड़ी गई है विनिर्देश अनुतोष अधिनियम में? धारा 14 का नई जोड़ी गई है जो एक्सपर्ट से रिलेटेड प्रोविजन है। 20 का जो है वो नई है, वो जोड़ी गई है जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड प्रोविजन है। 20 ख भी नई जोड़ी गई है जो स्पेशल कोर्ट से रिलेटेड प्रोविजन है, और 20 ग नई जोड़ी गई है जिसमें टाइम लिमिट दे रखी है टू डिस्पोज ऑफ द सूट अंडर दिस एक्ट। वो समय सीमा दे रखी है कितने समय में इस अधिनियम में
संस्थित किए गए वाद का निपटारा या उसको डिसाइड है वो किया जाएगा। वो डिसाइड या डिस्पोजल की टाइम लिमिट 20C में दे रखी है। इसके साथ एक अनुसूची ऐड हुई है इस अधिनियम में, जिसमें लिस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और सब प्रोजेक्ट आदि जो है वो दे रखा है। अवसंरचनात्मक परियोजनाएं और उनके जो है उपक्रम यदि आदि जो है उपवर्ग आदि जो है वो दे रखे हैं उसे वो कंसर्न अनुसूची में। कुछ धाराएं जो है उनमें संशोधन हुआ है, वो नई ऐड नहीं हुई है, पहले से थी विनिर्देश अनुतोष अधिनियम में, बट छोटा मोटा कुछ संशोधन हुआ है, किसी सबसेक्शन में कोई सब्स्टिट्यूट भी हुई है टोटली। वो कौन कौन सी धाराएं? धारा 6 है, 10 है, 14 है, 15 है, 16 है, 19 है, 20 है, 21 है, 25 है, 41 है। इन सभी धाराओं में क्या हुआ है? संशोधन हुआ है। विनिर्देश अनुतोष संशोधन अधिनियम 2018 जो है ये कौन सी तारीख से लागू हुआ, प्रवर्तन में आया, ऐसा ऑब्जेक्टिव पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। ये 1 अक्टूबर 2018, 1 अक्टूबर तो हर साल आता है, बट ये 1 अक्टूबर 2018 को जो है वो लागू हुआ है ये संशोधन अधिनियम। क्या पर्पज, उद्देश्य क्या था इस विनिर्देश अनुतोष अधिनियम 1963 को पारित करने का? कतिपय विनिर्देश अनुतोषों के संबंध में विधि को परिभाषित करने और संशोधित करने के लिए कुछ जो विनिर्देश अनुतोष है जो इस एक्ट में दे रखे हैं, उन विनिर्देश अनुतोष जो है उनके संबंध में जो विधि है उस विधि को परिभाषित करने के लिए और उसमें संशोधन करने के लिए विनिर्देश अनुतोष अधिनियम 1963 जो है वो पारित किया गया था। कौन कौन से स्पेसिफिक रिलीफ जो है विनिर्देश अनुतोष जो इस एक्ट में है वो दे रखे हैं? संपत्ति के कब्जे का प्रत्युदरण, हालांकि ये जनरल रिलीफ भी है, ये सीपीसी से भी है वो गवर्न होता है, बट इस एक्ट में कुछ स्पेसिफिक प्रोविजन लाइक सेक्शन 6 वगैरह जो है वो सीपीसी में आपको नहीं मिलेगा, तो विशिष्ट प्रावधान है वो। इसी तरीके से संविधाओं की विनिर्देश पालना, ये धारा 9 से लेकर और 25 तक ये विनिर्देश अनुतोष है। लिखतों का परिशोधन, ये धारा 26 में दे रखा है, ये भी विनिर्देश अनुतोष है। संविधाओं का विखंडन, ये धारा 27 से 30 तक में दे रखा है, ये भी जो है वो विशिष्ट है वो या विनिर्देश अनुतोष है। लिखतों का रद्दकरण जो है ये धारा 31 से लेकर और 33 तक में दे रखा है, ये भी विनिर्देश अनुतोष है। और घोषणात्मक डिक्रियां जो है वो धारा 34 और 35, दो प्रावधान है इसके बारे में, ये भी है वो विनिर्देश अनुतोष है। और निवारक अनुतोष भी विनिर्देश अनुतोष का ही एक भाग है। प्रिवेंटिव रिलीफ्स आर ऑल्सो अ स्पेसिफिक रिलीफ। निवारक अनुतोष भी जो है दो उसमें नेगेटिव कुछ करने का डायरेक्शन दिया जाता है, कुछ नहीं करने का डायरेक्शन दिया जाता है, बट इनको भी विनिर्देश अनुतोष ही कहा जाता है और इस एक्ट से ही गवर्न होते हैं। ये धारा 36 से लेकर और 42 तक के जो प्रावधान है, 2 चैप्टर कवर होंगे इसमें, चैप्टर 7 और 8 जो है ये भी है वो विनिर्देश अनुतोष की श्रेणी में आएंगे। तो ये सारे रिलीफ जो है इस एक्ट में दे रखे हैं, चाहे वो रिकवरी ऑफ पोजेशन है, चाहे वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, डिक्लेरेटिव डिक्री है और प्रिवेंटिव रिलीफ है। ये सारे अनुतोष जो है इस विनिर्देश अनुतोष अधिनियम 1963 में वो दिए गए। इस अधिनियम की प्रकृति क्या है? कभी कभी ऑब्जेक्टिव पेपर में इन पे भी प्रश्न आता है। विनिर्देश अनुतोष अधिनियम 1963 प्रकृति में कैसा है? भूतलक्षी है। इसका प्रभाव कैसा है? रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी है। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट तो हर लॉ का होता है, प्रत्येक विधि का जो है भविष्यलक्षी प्रभाव तो होता ही है, बट कुछ विधियां ऐसी हैं जिनका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी होता है। यह भी जो है विनिर्देश अनुतोष अधिनियम भी उन विधियों में से एक है जिनका भूतलक्षी प्रभाव है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ भूतलक्षी प्रभाव का? ये उन मामलों पर भी लागू होगा 1963 का अधिनियम जो उस समय न्यायालय में लंबित थे जब विनिर्देश अनुतोष अधिनियम 1963 जो है वो लागू हुआ। ये जिस तारीख को है वो लागू हुआ, उस लागू होने की तारीख पर जो पेंडिंग केसेस थे, इसका मतलब कॉज ऑफ एक्शन तो पहले अराइज हो चुके थे, प्रोसीडिंग भी इनिशिएट हो चुकी थी कॉम्पिटेंट कोर्ट में, उन कार्रवाइयों पर भी विनिर्देश अनुतोष अधिनियम 1963 जो है वो लागू होगा और इस एक्ट में दिए गए रिलीफ उन कार्रवाइयों में भी दिए जा सकते हैं। ये क्या विनिर्देश अनुतोष अधिनियम अपने आप में एक कंप्लीट लॉ है क्या? एग्जॉस्टिव लॉ है ये? नहीं, ये अपने आप में कंप्लीट लॉ नहीं है, संपूर्ण है वो विधि है वो नहीं है। ये क्या है? ये सप्लीमेंटल लॉ है, कॉम्प्लीमेंटल लॉ है। ये पहले से विद्यमान विधियों का क्या है? पूरक है, कॉम्प्लीमेंट करता है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को करता हो, चाहे रजिस्ट्रेशन एक्ट को करता हो, या अन्य विधि जो है वो इनसे संबंधित है उनको है वो पूरक के रूप में ये है वो विधि है। ये अधिनियम जो है किस पर आधारित है?
इक्विटी पर, साम्या पर है वो आधारित है विनिर्देश अनुतोष अधिनियम। इस पर भी प्रश्न आता है, इक्विटी एंड जस्टिस पर है या इक्विटी पर है, साम्या पर है या साम्या एवं न्याय पर है वो आधारित है। और विनिर्देश अनुतोष अधिनियम जो है किस प्रकार की विधि है, इस पर भी प्रश्न पूछा जाता है। हम इन रिलीफ को देखकर जो है कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो सब्सटेंटिव राइट्स है। ये सब्सटेंटिव राइट नहीं है। सब्सटेंटिव राइट कहां से क्रिएट होंगे? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से क्रिएट होंगे या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से वो क्रिएट होंगे या अदर कोई वो सब्सटेंटिव लॉ है वहां से वो क्रिएट होंगे। ये तो क्या है? प्रक्रियात्मक विधि। ये उपचार बताता है कि रिलीफ क्या उपलब्ध है आपको, जो है आपके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो तो, और उस रिलीफ को प्राप्त करने की प्रक्रिया भी क्या है, प्रोसीजर भी क्या रहा है, कैसे क्लेम किया जाएगा, प्लेंट में क्लेम होगा या अदरवाइज कोई एप्लीकेशन के माध्यम से क्लेम किए जाएंगे, और कोर्ट किन बातों के बारे में सेटिस्फाई होने के बाद ऐसा रिलीफ दे सकता है या रिलीफ देने से इनकार कर सकता है। वो प्रक्रिया जो है वो इस एक्ट में है वो बता रखी है। अभिव्यक्ति जो विनिर्दिष्ट अनुतोष जो है, इसका मतलब क्या है? ये एक अनुतोष की एक प्रजाति से, क्या है ये? एक अनुतोष की जो है वो प्रजाति या एक वर्ग से जो है ये एक उपचार है जिसका उद्देश्य दायित्व की यथावत पूर्ति करना है। संविदा में अभिव्यक्त विनिर्दिष्ट अनुतोष का उपयोग प्रतिकारात्मक अनुतोष के लिए वो किया जाता है। निष्पाद्य संविदा में व्यतिक्रम से व्यथित व्यक्ति द्वारा संविदा का पालन विवश करने के लिए वाद लाया जा सकता है, और ऐसा अनुतोष जो है वो सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। सकारात्मक में कोर्ट जो है संविदा के विनिर्देश अनुपालना का ऑर्डर है वो देगा, और नकारात्मक तब देगा जब इंजेक्शन है वो व्यादेश का अनुतोष है वो मांगा गया, तब कोर्ट जो है कुछ नहीं करने का जो है वो डायरेक्शन या ऑर्डर है वो देगा। यह सकारात्मक है जब इसके पालन का दावा, और नकारात्मक है जब किसी कार्य की रोकथाम के लिए वांछित है या कोई कार्य नहीं करने के लिए वो कोई अनुतोष दिया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? नकारात्मक अनुतोष है वो कहेंगे, जो निवारक अनुतोष के रूप में दे रखे हैं इस अधिनियम में। विधि की 3 श्रेणियां होती है। विधि या कानून जो है उसकी 3 श्रेणियां हैं जो अधिकारों को परिभाषित करती है, जिसमें पक्षकारों के अधिकार और दायित्व जो है उनको सृजित किया गया है, उनकी परिभाषा दे रखी है। वो सब्सटेंटिव लॉ या सारवान विधि या मौलिक विधि कहलाती। क्या कहलाती? जिसमें राइट्स एंड ऑब्लिगेशन क्रिएट होते हैं, वो कौन सी विधि है? वो सारवान या मौलिक विधि कहलाती है। दूसरा जो उपचार को परिभाषित करती है, और तीसरा जो केवल प्रक्रिया को जो है परिभाषित करती है या प्रक्रिया को विहित करती है। ये बाद वाली दोनों जो कैटेगरीज है ये क्या है? ये प्रोसीजर लॉ है। बाद वाली जो दोनों कैटेगरीज है ये क्या है? ये प्रक्रियात्मक विधि है। और पहली जो कैटेगरी है ये क्या है? ये सारवान या मौलिक विधि है, सब्सटेंटिव लॉ है वो ये। और जो सेकंड और थर्ड जो कैटेगरी है वो क्या है? वो प्रोसीजर लॉ है। ये हमारा जो एक्ट है विनिर्देश अनुतोष अधिनियम जो है ये सेकंड कैटेगरी में कवर होता है, जो रेमेडी को है वो विहित करता है या परिभाषित करता है, इससे कंसर्न है। इसलिए ये कैसी विधि है? ये प्रक्रियात्मक विधि है। पार्ट फर्स्ट of this act, the title of the part first is preliminary, and section 1 to 4. Section 4, specific relief to be granted only for enforcing the individual civil rights. Specific relief to be granted only for enforcing the individual civil rights and not for enforcing penal laws. Specific relief can be granted only for the purpose of enforcing the individual civil rights and not for mere purpose of the enforcing a penal law. What is the purpose to grant the specific relief? Only a one purpose, to enforce the individual civil rights. To enforce the individual civil rights. विनिर्दिष्ट अनुतोष जो है इसको किस प्रयोजन के लिए अनुदत्त किया जाता है? व्यक्तिगत सिविल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए। व्यक्तिगत सिविल अधिकार जो है, इंडिविजुअल सिविल राइट, इनका इन्फोर्समेंट करवाने के लिए, उनका प्रवर्तन करवाने के लिए क्या दिया जाता है? विनिर्दिष्ट अनुतोष है वो कोर्ट द्वारा प्रदत्त किया जाता है, अनुदत्त किया जाता है। दंड विधियां जो है क्या उनके प्रवर्तन के लिए है वो विनिर्दिष्ट अनुतोष दिया जा सकता है? नहीं। दंड विधियों के प्रवर्तन के लिए जो है वो विनिर्दिष्ट अनुतोष नहीं दिया जा सकता, केवल व्यक्तिगत सिविल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए ही दिया जा सकता है। एक बार मेन एग्जाम में भी सेक्शन 4 से क्वेश्चन पूछ लिया गया, फॉर व्हाट पर्पस द स्पेसिफिक रिलीफ टू बी ग्रांटेड अंडर एसआरए। विनिर्देश अनुतोष अधिनियम के अंतर्गत विनिर्देश अनुतोष
किस प्रयोजन के लिए दिया जाता है, इसमें अलग अलग स्टूडेंट्स ने या कैंडिडेट्स ने अलग अलग बातें लिखी। वो एग्जाम मैंने भी दिया था और मैंने एग्जैक्ट उसमें सेक्शन 4 कॉपी पेस्ट किया था। 2 में से 2 मार्क्स में लेते मुझे। फॉर द पर्पज ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ इंडिविजुअल सिविल राइट्स, व्यक्तिगत सिविल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विनिर्देश अनुतोष दिया जाता है धारा 4 के अनुसार, ऐसा लिखते हुए। तो आपको भी यदि आप वो प्रॉपर इस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो इस तरीके का कोई टेक्निकल क्वेश्चन आएगा तो उसमें पूरे में से पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। देन चैप्टर फर्स्ट, हाँ जी, इंडिविजुअल राइट है तो पर्सोनम ही हुआ, इन रैम नहीं है। चैप्टर फर्स्ट ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। सेक्शन 5, रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। अ पर्सन entitled to the possession of the specific immovable property may recover it in the manner provided by the Code of Civil Procedure 1908. If a person who is entitled to the possession of the specific immovable property, how to recover, by what manner recover the possession of the immovable property, the manner which is prescribed in Civil Procedure Code, he can recover the possession as per section 5. And in section 5, the suit based on title by ownership and suit based on the possessory title. The two types of the suit cover under section 5 of the Specific Relief Act. And what is the limitation period for filing of the suit under section 5? 12 years. 12 years limitation period to institute a suit for recovery of possession of immovable property under section 5 of the Specific Relief Act. Read with the article 64 and 65 of the schedule of the limitation act. हिंदी में देखेंगे आप धारा 5, विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति का प्रत्युद्रण या विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति के कब्जे की पुनः प्राप्ति। जो व्यक्ति किसी विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति के कब्जे का हकदार है, वह सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 द्वारा उबंधित प्रकार से उसका प्रत्युद्रण कर सकता है, उसके कब्जे की पुनः प्राप्ति कर सकता है। कैसे कर सकता है? जो व्यक्ति विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति के कब्जे का हकदार है, उस कब्जे की रिकवरी या कब्जे की पुनः प्राप्ति वो कैसे कर सकता है? जो सिविल प्रक्रिया संहिता में मैनर दे रखा है, तरीका दे रखा है, सूट फाइल होगा, उसके अंदर डिक्री आएगी, डिक्री का एग्जीक्यूशन होगा और एग्जीक्यूशन के दौरान उसको पोजेशन जो है वो दिलाया जा सकता है। जो सीपीसी में ऑर्डिनरी मैनर दे रखा है पोजेशन का, उसी तरीके से वो कब्जा है वो अपना ले सकता है। सोमनाथ बोरमन वर्सेस एसपी राजू 1970 सुप्रीम कोर्ट held that mere possessory title acquired by the adverse possession is enough to maintain the action under section 5 of the Specific Relief Act 1963। सोमनाथ बनाम राजू 1970 सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 5 के अंतर्गत कार्रवाई पोषणीय होने के लिए मात्र प्रतिकूल कब्जे द्वारा अर्जित संपत्ति का हक क्या है? पर्याप्त है। एडवर्स पोजेशन से यदि पजेसरी टाइटल मिला है, प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से जो है वो यदि हक प्राप्त हुआ है, राइट प्राप्त हुआ है, उसके बेसिस पर भी सेक्शन 5 में सूट लाया जा सकता है। ओनरशिप उसके पास जो है बाय परचेजिंग या बाय सक्सेशन एटसेट्रा होनी आवश्यक नहीं है। उत्तराधिकार के माध्यम से उसके पास स्वामित्व हो या उसने परचेज किया हो उस प्रॉपर्टी को जो है, इस कारण से ओनरशिप हो, यह जरूरी नहीं है। यदि एडवर्स पोजेशन के माध्यम से भी टाइटल एक्वायर किया उसने, तो उसके बेसिस पर भी सेक्शन 5 में सूट लाया जा सकता है। और जो कुछ भी लिमिटेशन पीरियड दे रखा है लिमिटेशन एक्ट में, उसके वो विद इन जो है उस समय के भीतर अपना सूट फाइल करके और सीपीसी में जो ऑर्डिनरी प्रोसीजर दे रखा है उस प्रोसीजर से अपना पोजेशन रिकवर कर सकता है। सेक्शन 6 is very important for prelims, mains and interview all stages. Suit by the person dispossessed of the immovable property. There are 4 subsections in section 6 of the SRA. The subsection first, if any person is dispossessed without his consent
of immovable property otherwise than in due course of law, otherwise than the due course of law, he or any person through whom he has been in possession or any person claiming through him may by suit recover the possession thereof, notwithstanding any other title that may be set up in the such suit. This subsection first is amended by the 2018 amendment. After this he to him, this portion is certain, amended by the 2018 amendment. Who can institute the suit under subsection first of section C? The person who disposes by the trespasser, etc. A person who through any other person has been in possession, means if that property is in the possession of the lessee or the tenant, and though tenant is dispossessed, but the owner of that property having the possession over that property through that tenant, owner can also institute the suit under subsection first of the section 6, or any person claiming through him, maybe a legal representative, etc., or any right created in favor of that person, can institute a suit under subsection first for recovery of the possession of the immovable property, though he having no title or ownership over the concerned property. That person can institute a suit for recovery of possession, but there must be a lawful possession, judicial possession of the concerned person, and dispossess from that property without his consent and otherwise than due course of law. That illegally dispossessed, forcefully dispossessed person can recover the possession under subsection first of the section 6 by instituting a summary suit before the competent court. Subsection 2, no suit under this section shall be instituted after the expiry of the 6 months from the date of disposition or against the government. Two important things provided under subsection 2 of section 6. Strict limitation period is 6 months from the date of disposition. The suit under subsection first of section 6 must be instituted within 6 months from the date of the disposition. If the suit has been instituted after the expiry of that 6 months, that suit is considered barred by law of limitation and shall be dismissed by effect of section 3 of the Limitation Act. Read with the subsection 2 of section 6 of SRA. And whether suit may be instituted against the government under section 6. If government disposes any person from any property, the suit against government is maintainable? No. Suit against government is not maintainable. It is restricted, prohibited under subsection 2 of section 6. Subsection 3, certain remedies are extinguished in subsection 3. No appeal shall lie from any order or decree passed in any suit instituted under this section, and nor shall any review of any such order or decree be allowed. Remedy of appeal has been curtailed or remedy of review has been curtailed. No appeal shall not lie against the decree or order passed in a suit filed under section 6, or no review or power of review can be exercised by the court to reconsider that decree or order. Both the remedies, appeal and review, has been curtailed or extinguished, restricted under subsection 3 of the section 6 of the SRA. Then what is the proper remedy against the decree or order? Revision under section 115 of the Civil Procedure Code before the Honorable High Court. Subsection 4, nothing in this section shall bar any person from suing to establish his title to the such property and to recover the possession thereof. The person who once disposes under section 6 of the SRA, or the possession has been recovered from that person under section 6, and that person is the owner of that property, whether he can institute a suit under section 5 of the Specific Relief Act and recover the possession again? Yes. Unsuccessful defendant in suit filed under section 6 may institute a suit under section 5 of the Specific Relief Act and he can recover. If the owner of the property forcefully or illegally disposes the tenant, lessee, etc. from the possession, once lessee or the tenant can recover the possession under section 6 of the SRA, but the owner again can institute a suit under section 5 of the
specific relief act, the grounds which are mentioned under the time being enforced law, if there is any fault on the part of the tenant or the lessee, the paying premium or the breach of the any condition etc., make material changes or alteration in the concerned property, he can institute a suit under section 5 and can recover the possession from the concerned tenant or lessee as per the interpretation of the subsection 4 of section 6. Possession word used under the section 6 of the specific relief act includes the actual and absolute possession, or also includes the constructive possession under section 6. Though the owner of the property having the constructive possession over the property through tenant or lessee, that constructive possession is also included under the subsection 1st of section 6. What is the remedy against the decree or order passed under section 6 is only a revision petition under section 115 of the Civil Procedure Code. Whether question of ownership, issue of ownership or the issue of title is relevant under section 6? No. Only the issue of the lawful possession over the property is relevant under section 6. The question of ownership or title is irrelevant or inconsistent under section 6 as per the interpretation of the last line of subsection 1st of section 6. In last line of the subsection 1st of section 6, this line, notwithstanding any other title that may be set up in such suit, means the issue of the title or ownership is totally or at all irrelevant in the suit under section 6 of the SRA. What is relevant? Issue of lawful possession over the property. Issue of line of the subsection 1st of section 6, this line, notwithstanding any other title that may be set up in such suit, means the issue of the title or ownership is totally or at all irrelevant in the suit under section 6 of the SRA. What is relevant? Issue of lawful possession over the property. Issue of lawful possession over the property, that issue is relevant or involved in the suit under section 6. Whether servant, manager, trespasser, etc. are entitled to institute a suit under section 6? No. As per the interpretation of the section 6, servant, manager, trespasser, etc. are not entitled to institute a suit under section 6 of the SRA. Both section 5 and 6 provides the alternative remedy and are mutually exclusive. What are the relationship between the two sections, section 5 and section 6? 5 and 6 provides the alternative remedy. What is the alternative remedy? One remedy is on the basis of title, that is under section 5, and another remedy which is on the basis of the lawful possession, that is under section 6 of the SRA, and both sections are mutually exclusive to the each other, not depends upon the each other. Both are the independent provision. What are the object of the section 6? To discourage the people from the taking the law into their hands, however good their title may be, and to provide a cheap and useful remedy to a person disposes of the immovable property in due course of the law. The first purpose of the section 6 to discourage the public or the trespasser etc. from taking the law into their hands. Though they may have a title over the property, but the person who is already in the lawful possession cannot be dispossessed by the forcefully and illegally. He can be dispossessed by the due course of the law. Due course of the law, the proceeding initiated before the tribunal or the competent court, and if concerned court pass the decree in favor of the owner of the concerned property to dispossess the concerned lessee or the tenant etc., then in execution of that decree he can be dispossessed from the concerned property, but not illegally and forcefully, unlawfully dispossessed from that property. It is the one of the purpose of the section 6, and another purpose is to provide a cheaper and fast remedy, a useful remedy to a person who is dispossessed from the property by otherwise than due course of the law. These are the two purposes of the section 6. What are the essential ingredient of the section 6? The plaintiff who institute the suit under section 6, he is in judicial possession, lawful possession of the immovable property in dispute, that he had been dispossessed
of without his consent and without due course of the law, and that disposition took place within the 6 months from the date of the suit. While A and B are in joint possession, C disposes the A alone from his half share. A can institute a suit, a sue under section 6 of the Specific Relief Act 1963 for restoration of the possession. Means the part of restoration of the part of the immovable property is also may be permitted or allowed under section 6 of the Specific Relief Act. धारा 6 देखेंगे आप, विनिर्देश अनुतोष अधिनियम की, स्थावर संपत्ति से बेकब्जा किए गए व्यक्ति द्वारा वाद। बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, मुख्य परीक्षा में भी हर उपधारा इंपॉर्टेंट है इसकी, और इंटरव्यू के अंदर भी सेक्शन 6 पूछा जाता है, और प्रीलिम्स में भी टाइटल से किसी सबसेक्शन से जो रेमेडी कर्टेल कर रखी है, लिमिटेशन दे रखी है, किसके अगेंस्ट सूट मेंटेनेबल नहीं है, ओनरशिप का इश्यू या क्वेश्चन रेलेवेंट इररेलेवेंट है या नहीं, इनमें से कोई भी बात प्रीलिम्स में भी पूछी जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति अपनी सम्मति के बिना स्थावर संपत्ति से विधि की सम्यक अनुक्रम के अन्यथा बेकब्जा कर दिया जाता है, तो वह व्यक्ति जिसको बेकब्जा किया है, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके माध्यम से उसका कब्जा है, वह या उससे व्युत्पन्न अधिकार का दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति जो है, किसी अन्य ऐसे हक के होते हुए भी जो ऐसे वाद में खड़ा किया जा सकता है, उसका कब्जा वाद द्वारा क्या कर सकता है, प्रत्युद्धृत कर सकता है, उसका कब्जा पुनः प्राप्त है वो कर सकता है। एक व्यक्ति स्थावर संपत्ति पर विधिपूर्ण कब्जे में था, उसकी सम्मति के बिना, विधि की सम्यक अनुक्रिया के अबो बिना उसको बेदखल कर दिया गया, कब्जे से बेदखल किया गया व्यक्ति स्वयं वाद ला सकता है। कोई अन्य व्यक्ति बेदखल किए गए व्यक्ति के माध्यम से कब्जा रख रहा था, वह भी वाद ला सकता है। और जिस व्यक्ति का ऐसा अधिकार है, उससे व्युत्पन्न अधिकार, उसकी मृत्यु आदि हो जाए तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव आदि जो है, या उसने कोई और राइट किसी व्यक्ति के फेवर में क्रिएट कर रखा है, तो वो अन्य व्यक्ति भी जो है उसके माध्यम से दावा करने वाला जो है वो भी है वो वाद है वो संस्थित कर सकता है धारा 6 की उपधारा 1 के अंतर्गत। यद्यपि जिस व्यक्ति के विरुद्ध वाद संस्थित किया जा रहा है उसके पास ओनरशिप भी हो सकती है, टाइटल भी हो सकता है सेक्शन 6 में जिसके अगेंस्ट सूट लाया जा रहा है, उसके बावजूद भी जो विधिपूर्ण कब्जे में था और उसको विधि की प्रक्रिया से अन्यथा बेदखल किया गया, एक बार उसको सेक्शन 6 में ये जो समरी सूट लाया जाएगा, संक्षिप्त वाद संस्थित किया जाएगा, इसमें कब्जा कोर्ट के द्वारा दिलाया जा सकता है। ओनरशिप का जो जिसके अगेंस्ट सूट लाया गया उसके ओनरशिप का प्रश्न जो है, उसकी ओनरशिप इररेलेवेंट है, टोटली इररेलेवेंट है इस सूट के अंदर, यदि उसने अनलॉफुल तरीके से डिस्पोजेस किया किसी व्यक्ति को जो लॉफुल पोजीशन में था। उपधारा 2 देखेंगे आप, इस धारा के अधीन कोई भी बात बेकब्जा किए जाने की तारीख से 6 महीने के अवसान के पश्चात नहीं संस्थित किया जाएगा, और सरकार के विरुद्ध भी जो है वो नहीं संस्थित किया जाएगा। सरकार के विरुद्ध संस्थित नहीं होगा, और जिस दिन बेकब्जा किया उस तारीख से 6 महीने के समाप्ति के बाद भी संस्थित नहीं किया जाएगा। पॉजिटिवली हम ये कह सकते हैं कि ऐसा वाद बेकब्जा करने की तारीख से 6 महीने के भीतर लाना आवश्यक है, और सरकार के विरुद्ध ऐसा वाद नहीं लाया जा सकता, किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट लाया जा सकता है। सरकार ने यदि बेकब्जा किया है किसी सरकारी भूमि आदि से, तो उस कंडीशन में सेक्शन 6 का सूट नहीं ला सकते, 5 का लाया जा सकता है। धारा 5 का वाद सरकार के विरुद्ध भी है वो लाया जा सकता है, बट सेक्शन 6 का सूट गवर्नमेंट के अगेंस्ट है वो क्या कर रखा है, रेस्ट्रिक्ट कर रखा है। उपधारा 3 देखेंगे आप, इस धारा के अधीन संस्थित किसी भी वाद में पारित किसी भी आदेश या डिक्री से न तो अपील होगी और न ही ऐसे आदेश से जो है वो पुनरावलोकन होगा। अपील की रेमेडी जो सीपीसी में आपने पढ़ रखी है, फर्स्ट अपील, सेकेंड अपील, ऑर्डर से अपील, सुप्रीम कोर्ट में अपील आदि, वो अपील भी है वो नहीं होगी इस डिक्री और आदेश से। और रिव्यू जो आपने सीपीसी में सेक्शन 114 रीड विद ऑर्डर 47 धारा 114 संगठित आदेश 47 में पढ़ रखा है, वो रिव्यू भी उपलब्ध नहीं है। न तो है वो इस डिक्री और आदेश का पुनरावलोकन होगा और न इसके विरुद्ध जो है वो अपील होगी। जब अपील नहीं है तो फिर हमने 115 सीपीसी में पढ़ रखा है, उस डिसीजन से क्या हो सकती है, रिवीजन हो सकती है, पुनरीक्षण याचिका हाईकोर्ट में पेश हो सकती है सीपीसी की धारा 115 में। सबसेक्शन 4 जो है, इस धारा की कोई भी बात किसी भी व्यक्ति को ऐसी संपत्ति पर अपना हक स्थापित करने के लिए वाद लाने से और उसके कब्जे का प्रत्युद्धरण करने से वर्जित नहीं करेगी। जिस व्यक्ति के विरुद्ध सेक्शन 6 में सूट लाया गया और एक बार कब्जा दिला दिया गया, जिससे कब्जा दिलाया था, क्या वो व्यक्ति वाद ला सकता है बाद में? यदि उसकी ओनरशिप और टाइटल है
और उस ओनरशिप और टाइटल के आधार पर उसको बेकब्जा कर सकता है? कर सकता है। मान लो ए ने एक सूट बी के अगेंस्ट इंस्टीट्यूट किया, और लास्ट 2 मिनट सर, ए ने एक सूट बी के अगेंस्ट जो है वो इंस्टीट्यूट किया और बी से कब्जा ए को दिला दिया। ए ओनर था उस ए ने बी के अगेंस्ट सूट है वो इंस्टीट्यूट किया, बी ओनर था उस प्रॉपर्टी का, और बी ने अपने किराएदार को जो है वो गलत तरीके से बेदखल है वो कर दिया, पट्टेदार को है वो गलत तरीके से बेदखल कर दिया। एक बार पट्टेदार को कब्जा वापस दिलाया जाएगा, पर क्या पट्टाकर्ता का या मकान मालिक या भूस्वामी का अधिकार समाप्त हो गया? एक बार कब्जा उसको वापस दिला देंगे, वो ऑनर बन गया क्या उस प्रॉपर्टी का? नहीं, वो ऑनर नहीं बना है, गलत तरीके से डिस्पोजेस किया था, इसलिए एक बार पोजीशन दिलाया। जिसकी ऑनरशिप है, जिसका टाइटल है, वो बाद में भी सेक्शन 5 या सीपीसी के किसी प्रोविजन के अंतर्गत सूट फाइल कर सकता है। और जो ग्राउंड्स दे रखे हैं टीपीए में, लीज के केस में सेक्शन 111 में जो ग्राउंड्स दे रखे हैं, अन्य किसी विधि के अंतर्गत उसको यदि किराया वो समय पर है वो नहीं देता है, कोई सारवान परिवर्तन कर दिया, उसने किसी अन्य व्यक्ति को कब्जा सौंप दिया है, न्यूसेंस कर रहा है, या अन्यथा किसी लॉ के अंतर्गत वहां से खाली करवाना कोई कंस्ट्रक्शन, रिपेयरिंग एटसेट्रा डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है, या बोनोफाइड नीड है, सद्भाविक आवश्यकता है, तो उनमें से किसी आधार पर ओनर फिर से सूट फाइल करके और उस व्यक्ति से कब्जा ले सकता है। ऐसा सबसेक्शन 4 में दे रखा है, और ये धारा उपधारा 4 है, इसको धारा 5 के साथ पढ़ना है आपको। मींस धारा 6 के जो वाद के अंदर असफल प्रतिवादी है वो पुनः वाद संस्थित कर सकता है धारा 5 का, और उस व्यक्ति से कब्जा वापस ले सकता है। यदि ग्राउंड उसके एग्जिस्ट करते हैं, साबित हो जाते हैं कोर्ट में, तो वो पुनः कब्जा है वो ले सकता है। कब्जे में धारा 6 के अंतर्गत वास्तविक और पूर्ण कब्जा भी शामिल है और आणविक कब्जा भी शामिल है। जैसे एक प्रॉपर्टी मेरी है और मैंने एक झेड नामक व्यक्ति को जो है वो किराए पर दे रखी है। एक ट्रेसपासर आता है और उस किराएदार को बेकब्जा कर देता है, तो किराएदार तो वास्तव में कब्जे में था और मैं किराएदार के माध्यम से कॉन्स्ट्रक्टिव पोजीशन रखता था। तो यहां कब्जा जो शब्द यूज लिया गया उसमें वास्तविक कब्जा भी शामिल है और आणविक कब्जा भी शामिल है। मींस जो वास्तव में बेदखल हुआ वो भी सूट ला सकता है, और किसी अन्य व्यक्ति का जो है उस पर आणविक कब्जा था उस बेदखल किए गए व्यक्ति के माध्यम से, वो भी धारा 6 का वाद जो है वो ला सकता है। धारा 6 के अंतर्गत पारित डिक्री या आदेश के विरुद्ध जो उपचार केवल सीपीसी की धारा 115 के अंतर्गत क्या है? पुनरीक्षण याचिका। क्योंकि अपील की रेमेडी को क्या कर रखा है? धारा 6 की उपधारा 3 में समाप्त कर रखा है कि अपील नहीं होगी इस डिक्री और आदेश से, और रिव्यू भी समाप्त कर रखा है। रिवीजन हो सकती है इसकी, पुनरीक्षण है वो किया जा सकता है 115 सीपीसी में। स्वामित्व या हक का जो प्रश्न है ये धारा 6 के वाद के अंतर्गत क्या होता है? अप्रासंगिक होता है या विसंगत होता है, इररेलेवेंट है, विसंगत है। मींस इवन ओनर जो है उससे भी कब्जा एक बार लॉफुल पोजीशन रखने वाले व्यक्ति को है वो दिलाया है वो जाएगा। आपकी ओनरशिप है, आप बाद में साबित करना कि यदि कोई आपके फेवर में ग्राउंड बनता है। एक बार तो आपने कानून हाथ में लिया और उससे वो एक विधिमान्य कब्जा रखने वाले किराएदार को या पट्टेदार को आपने बेदखल किया है, वो एक बार कोर्ट उसको सेक्शन 6 के सूट में कब्जा दिलाएगा, ओनरशिप पर विचार ही नहीं करेगा, विधिपूर्ण कब्जे पर विचार करेगा। और धारा 5 और 6 जो है ये दोनों वैकल्पिक उपचार देते हैं। वैकल्पिक का मतलब सेक्शन 5 का जो सूट है उसका बेसिस टाइटल है, क्या है? स्वामित्व या हक है, और धारा 6 का जो वाद है इसका बेसिस क्या है? लॉफुल पोजीशन है, विधिपूर्ण जो है वो कब्जा है। इसलिए ये दोनों जो है वो अल्टरनेटिव है, वो